Assalamu alaikum first year. How are you doing? I'm back with the new lesson for you. That is clearing in the sky. I hope that you have gotten bored with the repeated word button of chapter 1. On the contrary, you will find the present short story quite inspiring and refreshing. As you are watching an image on your screen, this is lesson number 2. The title of the story is Clearing in the Sky. We shall start reading the story from its theme, which is at the end of the story. This is page number 15, the theme of the story. The author's father has a weak heart. So there is a character of author's father and is a heart patient. For 40 years the doctors have been telling him to be careful. He has been ill for almost 40 years. Since that time the doctors have been advising him to be very careful about his health. The doctors have been forbidding him, preventing him to work on his farm, from working on his farm, from doing any kind of hard work, because he hasn't long to live, because he's not much time to live, as is the heart patient. Now, in spite of the prediction, in spite of all their pieces of advice, all the predictions, he has lived to be 70 years old. He is still alive and he is of 70 years old. And he wants to show his son something important at the top of the mountain. And in this story, he wants to show his son something very important which is placed at the top of the mountain. In the simple story, the son reflects his father's deep love of nature and the strength of his human spirit. So this is the main theme. In this simple story, the story seems to be very simple. But the main idea of the story is deep love of nature, love for nature and strength of human spirit and the power of human spirit. The sun reflects, बेटा जो है वो अक्कासी करता है. The son is also the author of the story. रिफ्लेक्ट्स वो अक्कासी करता है हिज फादर्स डीप लव ऑफ नेचर, उसके फादर की फितरत के साथ, नेचर के साथ जो मोहब्बत है वो बताता है. एंड द स्ट्रेंथ ऑफ ह्यूमन स्पिरिट, और वो ये बताता है कि इंसान के जो स्पिरिट है, इंसान का जो जज्बा है, उसमें कितनी ताकत होती है. नाउ लेट्स सी व्हाट हैपन्स इन द स्टोरी. Lesson 2, Clearing in the Sky by Just Stewart. Clearing means here clearing means a piece of land cleared and cultivated. ज़मीन का टुकड़ा जिसको साफ किया गया हो और काश्त किया गया हो. Cleared and cultivated. Clearing means a piece of land which has been cleared and cultivated. In the sky doesn't mean कि आसमान पे. In the sky का मतलब ये नहीं है कि आसमान पे. It means at the highest point of the mountain. At the highest point of the mountain. तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि बुलंदी पे साफ किया हुआ, काश्त किया हुआ, काश्तशुदा ज़मीन का टुकड़ा. Clearing, the word clearing here is gerund. Let's start translating the lesson. This is the wages, said my father, pointing with his cane across the deep valley below us. I want to show you something you haven't seen for many years. This is the wages. Yes, यही रास्ता है. said my father, मेरे फादर ने कहा. pointing, indicating, इशारा करना.
with this cane. Cane is a walking stick. Across the deep valley. Deep valley नीचे गहरी वादी. Below us हमारे नीचे. This is the way Jess said my father. मेरे बाप ने कहा जैस यही रास्ता है. Pointing with this cane across the deep valley below us. हमारे नीचे गहरी वादी की तरफ छड़ी से इशारा करते हुए. आई वॉन्ट टू शो यू. मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ. समथिंग कोई ऐसी चीज़ यू हैव नॉट सीन फॉर मैनी ईयर्स जो कि तुमने कई सालों से नहीं देखी. मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो तुमने कई सालों से नहीं देखी. नाउ नोट द यूज़ ऑफ द स्टार्ट ऑफ इन्वर्टेड कॉमास, द एंड ऑफ इन्वर्टेड कॉमास एंड द यूज़ ऑफ एक्सक्लेमेटरी मार्क at the end of almost each statement by the old man. जो ओल्ड मैन की स्पीच है ना, तकरीबन काफ़ी ज़्यादा स्टेटमेंट्स के एंड पे हम एक्सक्लेमेटरी मार्क देखेंगे और हम देखेंगे कि ये एक्सक्लेमेटरी मार्क यहाँ पे किस वजह से है. नाउ कम टू द ट्रांसलेशन. यही रास्ता है, मेरे बाप ने कहा अपनी छड़ी से नीचे गहरी वादी की तरफ इशारा करते हुए. मैं तुम्हें कुछ ऐसा दिखाना चाहता हूँ जो कि तुमने कई सालों से नहीं देखा. जो स्टेटमेंट हम इंग्लिश में इन्वर्टेड कॉमास में पढ़ेंगे, उर्दू में भी हम इन्वर्टेड कॉमास में ही उसको पुट करके लिखेंगे. Isn't it too hot for you to do much walking? क्या आपके लिए बहुत गर्मी नहीं है कि आप वॉक कर सकें? क्या आपके लिए इतना ज़्यादा पैदल चलने के लिए मौसम कुछ ज़्यादा गर्म नहीं है? I wiped the streams of sweat from my face to keep them from stinging my eyes. Wiped, removed, streams, flow, sweat, perspiration, stinging, irritating. Now listen. क्या आपके इतने ज़्यादा पैदल चलने के लिए ये मौसम ज़्यादा गर्म नहीं है? I wiped the streams of sweat. मैंने पसीने के कतरे या धारें, स्ट्रीम फ्लो की सूरत में हो गया. मैंने अपने चेहरे से पसीने की धारें साफ की. टू कीप देम फ्रॉम, ताकि मैं उनको रोक सकूं. फ्रॉम स्टिंगिंग माई आइज़, अपनी आँखों में चुभन पैदा करने से. नाउ लिसन अगेन. मैंने अपने चेहरे से पसीने की धारें साफ की ताकि वो मेरी आँखों में गिर के चुभन पैदा ना कर सके. आई डिडंट वॉन्ट टू गो विद हिम. मैं उनके साथ नहीं जाना चाहता था. आई हैड जस्ट फिनिश्ड वॉकिंग अ हाफ माइल अपहिल फ्रॉम माई होम टू हिज. आई हैड जस्ट फिनिश्ड, मैं तो अभी अभी ख़त्म की थी. वॉकिंग पैदल चलना, अ हाफ माइल आधा मील, अपहिल बुलंद पहाड़ी, फ्रॉम माई होम अपने घर से, टू हिज उनके घर तक. नाउ लिसन अगेन. आई हैड जस्ट फिनिश्ड वॉकिंग अ हाफ माइल अपहिल. मैं तो अभी अभी आधा मील चढ़ाई चढ़ के आया था. फ्रॉम माई होम टू हिज, अपने घर से उनके घर तक. मैं अभी अभी अपने घर से उनके घर तक निसफ मील पहाड़ की चढ़ाई चढ़ के आया था. आई हैड कैरिड अ बास्केट ऑफ डिशेज टू मॉम. आई हैड कैरिड, मैं लाया था, अ बास्केट ऑफ डिशेज टू मॉम. मॉम के लिए खानों की टोकरी लेके आया था. डिशेज का मतलब बर्तन भी हो सकता है, बट हियर डिशेज मीन फूड और सर्विंग, मुख्तलिफ तरह के खाने. मैं वालदा के लिए खानों की टोकरी उठाकर लाया था, मुख्तलिफ तरह के खानों की टोकरी उठा के लाया था. देयर वर 2 स्लिप्स इन द रोड. सड़क में 2 जगह फिसलन थी. स्लिप्स, सड़क में 2 जगह फिसलन थी. एंड आई कुडंट ड्राइव माई कार, और मैं गाड़ी को ड्राइव नहीं कर पाया, मैं गाड़ी चला नहीं सकता था. एंड आई न्यू हाउ हॉट इट वॉज, और मुझे पता था कि उस वक़्त कितनी गर्मी थी.
It was 97 in the shade, 97 Fahrenheit. In the shade साए में दर्जा हरारत 97 Fahrenheit था. I knew that from January until April my father had gone to 8 different doctors. I knew मुझे पता था that from January until April, जनवरी से अप्रैल तक my father had gone to 8 different doctors. मेरा बाप 8 मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास जा चुका था. मैं जानता था कि जनवरी से अप्रैल तक मेरे वालिद 8 मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास जा चुके थे. वन ऑफ द डॉक्टर्स हैड टोल्ड हिम, डॉक्टर्स में से एक ने उनको कहा था नॉट टू वॉक द लेंथ ऑफ अ सिटी ब्लॉक, कि डॉक्टरों में से एक ने उनको कहा था कि वो एक शहर के एक ब्लॉक तक का भी सफ़र ना करें. वन ऑफ द डॉक्टर्स में से एक ने हैड टोल्ड हिम, उनको कहा था नॉट टू वॉक, इतना भी ना चलें, द लेंथ ऑफ ए सिटी ब्लॉक, कि एक शहर के इमारतों के ब्लॉक में. लिसन अगेन. डॉक्टरों में से एक ने उन्हें मशवरा दिया था कि वो शहरी एक ब्लॉक की मुसाफत भी तय ना करें, शहर के एक ब्लॉक का सफ़र भी तय ना करें. He told my father to get a taxi to take him home. उन्होंने मेरे फादर को कहा कि टैक्सी लें और घर जाएं. उन्होंने मेरे वालिद को टैक्सी के ज़रिए घर जाने के लिए कहा. But my father walked home 5 miles across the mountain, told mom what the doctor had said. But my father, लेकिन मेरा फादर walked home, पैदल चल के घर गया. 5 miles 5 मील, across the mountain, पहाड़ पार करके. And told mom, और जाके मॉम को बताया what the doctor had said, कि डॉक्टर ने क्या बोला था. लेकिन मेरा बाप पहाड़ी के उस पार 5 मील चल के घर पहुंचा और वालदा को बताया कि डॉक्टर ने क्या कहा था. 40 years ago a doctor had told him the same thing. 40 साल पहले भी एक डॉक्टर ने उनको यही बात कही थी. That not to walk for a long distance. यही बात कही थी कि मुसाफत नहीं करनी, पैदल नहीं चलना. And he had lived to raise, लेकिन वो ज़िंदा थे, उन्हें जीना था. टू रेज अ फैमिली ऑफ 5 चिल्ड्रन, क्योंकि उन्होंने 5 बच्चों की फैमिली की परवरिश करनी थी. लेकिन वो 5 बच्चों की परवरिश करने के लिए ज़िंदा रहे. ही हैड डन एज मच हार्ड वर्क इन दोज ईयर्स एज एनी मैन. उन्होंने इन सालों में इतनी ही मेहनत की जितनी शायद ही किसी शख्स ने की हो. उन्होंने इन सालों में इतनी मेहनत की जितनी कि शायद ही किसी शख्स ने की हो. ओके, नाउ दिस पैराग्राफ, द क्वेश्चंस which can be prepared from this paragraph can be, okay, the first question which was included in your board exam, listen very carefully. Why did the author not want to go with his father? Why did Jess or the author not want to go with his father? जैस अपने बाप के साथ क्यों नहीं जाना चाहता था? Because he had just finished walking a half mile uphill from his home to his father's, and he had carried a basket of dishes to his mom. What was the temperature at that time? The temperature at that time was 97 Fahrenheit in the shade. What did the doctors tell Jess' father in the previous years? The doctors had told him not to walk the length of a city block. What did his father do? He walked home 5 miles across the mountain and told mom what the doctor had said.
why Jess's father had to live. He had to live in order to raise a family of 5 children. So, till this part of the story, we can get an image of Jess's father's character. He seems to be very strong person. He seems to be very hardworking person, and he seems to be very optimistic person. That is why he did not lose heart at the advice of doctors, and he did not leave working. He did not leave working hard on the suggestion of the doctors. I could not protest to him now. मैं अब एहतजाज नहीं कर सकता था. Protest, disagree, oppose. मैं अब एहतजाज नहीं कर सकता था. He had made up his mind. वो इरादा कर चुके थे. Made up, decide. इरादा कर लेना. When he made up his mind to do a thing, जब वो किसी काम का इरादा कर लेते, वो do it if he had to crawl. तो वो काम करके ही रहते, चाहे उनको रींग के क्यों ना करना पड़ता. When he made up his mind, जब अपना ज़हन तैयार कर लेते टू डू अ थिंग, कोई काम करने का, ही वुड डू इट, तो वो करके रहते. इफ़ ही हैड टू क्रॉल, चाहे उनको रींग के क्यों ना करना पड़ता. ही डिडंट केयर, वो परवाह नहीं करते थे. इफ़ इट वॉज 97 इन द शेड, के साए में दर्जा हरारत 97 है और 16 बिलो ज़ीरो, या दर्जा हरारत जो है वो बिलो ज़ीरो, के वो 0 पॉइंट से नुक्ता इंजमात से जो है वो नुक्ता इंजमात से 16 दर्जे नीचे हो. वो इस बात की परवाह नहीं करते थे कि दर्जा हरारत 97 फ़ारेनहाइट हो, या दर्जा हरारत जो है वो नुक्ता इंजमात से 16 दर्जे नीचे हो और -डिग्री -16. आई वाइप्ड मोर स्वेट फ्रॉम माई फेस, मैंने अपने चेहरे से और पसीना साफ़ किया. एज ए फॉलोड हिम डाउन, और मैं उनके पीछे चलने लगा. डाउन द लिटिल पाथ, डाउन उतरना, द लिटिल पाथ छोटा सा रास्ता, बिटवीन द पैस्चर एंड द मेडो, पैस्चर एंड द मेडो, जो कि चरागा, पैस्चर चरागा, मेडो सब्ज़ाज़ार, चरागा और सब्ज़ाज़ार. नाउ लिसन. आई वाइप मोर स्वेट फ्रॉम माई फेस, मैंने अपने चेहरे से और पसीना साफ़ किया. एज फॉलोड हिम डाउन, जब मैं उनके पीछे पीछे उतर गया उस रास्ते पे. द लिटिल पाथ बिटवीन द पैस्चर एंड द मेडो, जो कि चरागा और सब्ज़ाज़ार के दरमियान में से गुज़रता था. मैंने अपने चेहरे से पसीने के और कत्ते साफ़ किए और मैं उनके पीछे उस रास्ते पे उतर गया जो चरागाह और सब्ज़ाज़ार के दरमियान गुज़रता था. नाउ बाय रीडिंग दिस पैसेज वी लर्न दैट जेस फादर वाज अ डिटरमिन्ड पर्सन. व्हेन ही मेड अप हिज माइंड, he made up his mind to do a thing, he would do it in any case, in every case. He didn't care if it was too hot or if it was too cold. So he was a determined person, resolute person. He had firm determination. So we had gotten 2 qualities of Jay's father till this part of the lesson. The first, that he was a very hard-working person. Secondly, that he was a determined person. Suddenly he stopped at the edge of a meadow, took his pocket knife from his pocket and cut a wisp of alfalfa. Suddenly, अचानक, he stopped, वो रुके, at the edge of the meadow, चरागा के किनारे पर, सब्ज़ाज़ार के किनारे पर. टुक हिज पॉकेट नाइफ, अपना जेबी चाकू निकाला. फ्रॉम हिज पॉकेट से. अचानक वो रुके, अपना जेबी चाकू जेब से निकाला. एंड कट अ विस्प ऑफ एल्फा,
विस्प ऑफ, विस्प का मतलब बंच, बंच का मतलब गुच्छा, विस्प गुच्छा, बंच गुच्छा, ऑफ एल्फा, एल्फा इज अ काइंड ऑफ हे मीन्स चारा, फॉडर। एल्फा एक चारे के पौधे का नाम है, एक पौधा जो कि चारे के तौर पे इस्तेमाल होता है, उसका नाम है। नाउ लिसन, सडनली स्टॉप्ड एट द एज ऑफ मेडो, अचानक वो सब्जाजार के किनारे पे रुके। टुक हिज पॉकेट नाइफ फ्रॉम हिज पॉकेट, जेब से जेबी चाकू निकाला। कट अ विस्प ऑफ एल्फा, और चारे के पौधे से एक गुच्छा काट लिया, चारे के पौधे से एक गुच्छा काट लिया। ही हेल्ड इट अप, फिर उन्हें उसको रखा अप, ऊपर, बिटवीन हिम एंड द सन, अपने और सूरज के दरमियान किया, फिर उन्हें उसको अपने और सूरज के दरमियान किया। लुक एट दिस जेस, देखो जेस, ही ब्रैग्ड, उन्होंने इतराते हुए कहा, उन्होंने इतराते हुए कहा, ये देखो जेस, डिड यू एवर सी बेटर एल्फा ग्रो आउट ऑफ द अर्थ, क्या तुमने कभी ज़मीन में उगा हुआ इससे बेहतर चारा देखा है? डिड यू एवर सी, क्या कभी तुमने देखा है? बेटर बेहतर, एल्फा चारा, ग्रो आउट उगता हुआ, ऑफ द अर्थ ज़मीन में से, क्या तुमने पहले कभी ज़मीन में उगा हुआ इससे बेहतर चारा देखा है? इट्स द बेस्ट लुकिंग हे आई हैव एवर सीन एनी प्लेस, आई सेड, इट्स द बेस्ट लुकिंग हे, ये बेहतरीन चारा है, हे फॉडर, FODDER, ये बेहतरीन चारा है। आई हैव एवर सीन एनी प्लेस, जो कि मैंने शायद ही कहीं देखा हो। आई सेड, मैं बोला, आई हैव नेवर सीन बेटर लुकिंग एल्फा इवन द लिटिल सैंडे रिवर बॉटम्स, लिटिल सैंडे रिवर बॉटम्स। नाउ लिसन, little, L is capitalized, sandy, S is capitalized, river, R is capitalized. Okay, so this is the proper noun, the name of some river. Now I have never seen better looking alfalfa, मैंने इससे बेहतर चारा नहीं देखा, even in the little sandy river bottoms, यहाँ तक के लिटिल सैंडे के जो पैंदा है, जो उसके नशेबी इलाका है, मैंने वहाँ पे भी इस तरह का चारा नहीं देखा, मैंने इससे बेहतर चारा कभी नहीं देखा, यहाँ तक कि लिटिल सैंडे दरिया के नशेबी इलाकों में भी नहीं देखा। When I bought this little farm, everybody around had said I would end up with my family at the country poor farm if I tried to make a living here. When I bought this little farm, जब मैंने ये फॉर्म ख़रीदा था, everybody around here said, तो यहाँ पे हर बंदा यही कहता था, I would end up with my family, कि मैं अपनी फैमिली के साथ ख़त्म हो जाऊँगा, at the country poor farm, country देहाती, पुअर का वर्ड अगर लैंड के लिए यूज़ हो इट मीन्स बैरन, पुअर का वर्ड लैंड के लिए यूज़ हो इट मीन्स बैरन, बंजर। इफ़ आई ट्राई टू मेक अ लिविंग हियर, लिविंग मीन्स अर्निंग, रोज़ी कमाना, रोज़ी कमाना। ही ब्रैक्ड, ओके, व्हेन आई बॉट दिस लिटिल फार्म, जब मैंने छोटा सा फार्म ख़रीदा था, एवरीबॉडी अराउंड हियर सेड, तो यहाँ पे इर्द गिर्द हर बंदा यही कहता था, आई वुड एंड अप विद माई फैमिली, कि मैं अपने ख़ानदान के साथ ख़त्म हो जाऊँगा, एट द कंट्री पुअर फार्म, इस देहाती बंजर फॉर्म पे मैं अपने ख़ानदान के साथ ख़त्म हो जाऊँगा। इफ़ आई ट्राई टू मेक अ लिविंग हियर, अगर मैंने यहाँ पे रोज़ी कमाने की कोशिश की, अगर मैंने यहाँ पे रोज़ी कमाने की कोशिश की तो मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे ख़त्म हो जाऊँगा। ही ब्रैग्ड अगेन, उन्होंने दोबारा इतराते हुए कहा, इट टुक मी 30 years टू इम्प्रूव, मुझे 30 साल लगे टू इम्प्रूव दिस ओल्ड, बेहतर बनाने में, इम्प्रूव बेहतर बनाना, टू मेक बेटर, ओल्ड पुराने, वॉर्न आउट होगा
वेरी शेबी, खस्ता हाल, खस्ता हाल एकर टू मेक देम डू दिस, उनको इस हालत में लाने में. नाउ लिसन अगेन. इट टुक मी 30 years, मुझे 30 साल लग गए टू इम्प्रूव दिस ओल्ड वॉर्न आउट एकर्स टू मेक देम डू दिस. मुझे 30 साल लग गए इन पुराने खस्ता हाल एकड़ों को इस काबिल बनाने में और संवारने में मुझे 30 साल लग गए. इन पुराने खस्ता हाल एकड़ों को पैदावार के काबिल बनाने और संवारने में मुझे 30 साल लग गए. ओके, I shall stop here. Now this para, the last para here, today's last para gives us a question which was included in your annual examination, and the question was, what did everyone say to Jess' father when he bought that farm? जब जेस के फादर ने वो फॉर्म ख़रीदा था तो इर्द गिर्द के लोग उसको क्या कहते थे. पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ था, एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन नहीं है. अब आप लोग क्या करें कि आज के लेक्चर में जितने पॉसिबल क्वेश्चंस बनते हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, आप उनके आंसर्स को लिखने की कोशिश करें. सी यू टुमारो. हैव अ गुड टाइम. बाय टुमारो. अल्लाह हाफिज़.